हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो अभी मैं एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाली हूँ और ये स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट नंबर 17 है। तो इसको मैं लाइव अटेम्प्ट करूंगी, ठीक है, और मैं रफ शीट भी इसकी शो कर दूंगी। तो इसको चलिए करते हैं स्टार्ट। और जो भी मेरा टाइम टेबल है आज के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग मेरे को पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैराजम्बल है, तो इसको स्किप करेंगे। एरर कर लेते हैं, पहले एरर यहाँ पे फाइंड करना है। A single food or supplement would not boost your immunity overnight, and a whole foods based nutritious diet is crucial to maintain optimal function of immune system. A single food or supplement would not boost your immunity overnight, and a whole foods based, I think foods based nutritious diet is crucial to maintain optimal function of immune system। मुझे यहाँ पे कुछ एरर दिख नहीं रही है, बाद में देखते हैं। some populist leaders तो ऑफर होगा, ए में ही एरर है। if one compares a given language is spoken by pygmies with the same languages spoken by blacks, the pygmy version seems to contain, है ना, pygmy version, तो यहाँ seems होना चाहिए, सी में error है। Sometimes new recruits were punished for something they did not do enough well या do well enough, मुझे सी में error लग रहा है। और someone in their platoon did not do well enough, देखो यहाँ पे लिखा है well enough, यहाँ पे लिखा है enough well, तो ये वाला सही है डी, और सी में हो जाएगी एरर। During the French and Indian War, Washington and other people living in America thought of themselves as citizens of British colony. During the French and Indian War, Washington and other people living in America, मुझे यहाँ पे सी में एरर लग रहा है, living in America, Washington and other people thought of themselves as citizens of British colony, तो मुझे सी में यहाँ पे एरर लग रही है। The police have drawn, यहाँ पे क्या करना है, रीअरेंज करना है। The police have drawn flag for allegedly intimidating the kin, allegedly यहाँ पे बी सही है अपनी जगह पे। 11 days after the crime, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि refusing to hand over the body of the victim to the family and collecting forensic samples 11 days after the crime, तो यहाँ पे सी भी सही है अपनी जगह पे और बी भी सही, इसका मतलब नो रिक्वायरमेंट। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स इंक्लूडिंग द वंस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ द नोवल कोरोना वायरस, तो बी अपनी जगह पे सही है, इंक्लूडिंग हो सकता है अगर। often generate results that are false positives or false negatives, including result तो generate ही होगा, तो C B A हो जाएगा। Varus Boisian's family mobile phone nearby, hoping with the mobile phone waits with the mobile phone nearby, wants to hear, hoping to hear from the family's eldest son, तो अगर A होगा सेकेंड पे, who has been deployed to Nagorno-Karabakh since fighting started, तो C अपनी जगह पे सही लिखा हुआ है। waits with the mobile phone nearby, hoping to hear, waits to hear तो होगा नहीं, waits with the mobile phone nearby, hoping with the mobile phone, hoping to hear from, ठीक है, तो B A और C मुझे सही लग रहा है यहाँ पे। The web series, which dash an expensive 10 episodes, which detailed an, is not just a, तो दूसरे पे सी तो आएगा नहीं, ए लिखा हुआ है, तो Dodgy sketch of Mehta and his distinctly last ways,
his distinctly and his close cohorts. The web series which lasts an episode 10 an expensive 10 episodes. अगर ए सी ए को कर देते हैं स्टार्टिंग में और बी अपनी जगह पे सही है. So the web series which lasts an expensive 10 episodes is not just a Dorsey sketch of Mehta and his distinctly detailed ways and his close cohorts, it is also a portrait of. ये सही लग रहा है मुझे. CBA. लास्ट ईयर द मोस्ट डैश प्रोग्राम, द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम तो सही है, तो ए अपनी जगह पे सही है. ड्यूरिंग एडमिशन अक्रॉस मोस्ट कॉलेजेस, तो सी आएगा. यहाँ पे क्या जाएगा? विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स फिल्ड अप. नेक्स्ट यहाँ पे पैसेज है, इसको करेंगे स्किप. ये कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्लस्टर्ड? इट्स नॉट क्लस्टर्ड, इट्स क्लटर्ड. सो यहाँ पे लिखा है द वर्ल्ड इज ग्रेटली क्लटर्ड. व्हाट शुड इंडिया स्टैंड फॉर? द वर्ल्ड इज ग्रेटली क्लटर्ड. Western nations wants to throw Russia out of the G20. China has opposed them. India will be chair of the G20 from December 1, 2022. The world is greatly cluttered. What should India stands for? Arrayed, segmented, dejected, jumbled. Institutions of global governance have failed to unite the world. इससे पता चल रहा है cluttered का मतलब होगा यहाँ पे segmented. jumbled नहीं होगा, dejected नहीं होगा, arrayed, क्योंकि आगे लाइन में लिखा है कि fail to unite the world. ठीक है, तो arrayed भी नहीं होगा, तो cluttered का synonym हो जाएगा segmented. Following nearest synonym to the word upheaval. After the Asian financial upheaval, the G20 was formed in 1999. Turbulence होगा, turmoil. एंटोनिम पूछ रहा है तो टर्बुलेंस और टर्मोइल सिनोनिम है. ट्रैंक्विलिटी, अपरोर. ट्रैंक्विलिटी हो जाएगा कि उसका मतलब होता है शांत, और उन सब का मतलब होता है कि उथल पुथल होना. सो नेक्स्ट पैसेज का है, इसको देखते हैं. A textbook of sociology for nurses had gone viral on social media recently for a section called Merits of Dowry after widespread criticism. Cannot replace बता रहा है, कौन सा cannot replace होगा? Widespread criticism, extensive condemnation हो सकता है, global admonishment, severe reproachment, worldwide denunciation. मुझे लग रहा है यहाँ पे देखो serious reproachment का, severe reproachment, extensive condemnation, इसका मतलब निंदा करना. reproachment में भी वही होता है. admonish I think नहीं होगा यहाँ पे. denunciation, admonish पॉजिटिव वर्ड लग रहा है, एडमोनिश, तो ग्लोबल एडमोनिशमेंट मुझे लग रहा है रॉन्ग होगा. एक्सेसिबिलिटी इन बैंकिंग फैसिलिटीज इज क्रूशियल, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक बैंकिंग वायबल. द गवर्नमेंट हैज ईज्ड द बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी. द डिजिटल बैंकिंग प्रोटोकॉल्स आर ईज्ड. देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ बैंकिंग रेडीनेस. तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इन बैंकिंग फैसिलिटीज इज क्रूशियल. इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक बैंकिंग वायबल. Government has eased the banking accessibility. ये मुझे रॉन्ग लग रहा था. Government has eased the banking accessibility. The digital banking protocols are eased. Digital banking protocols are eased. There is a significance of banking readiness. ये मुझे अलग लग रहा है. इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक बैंकिंग वायबल. द डिजिटल बैंकिंग प्रोटोकॉल्स आर ईज्ड. देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ बैंकिंग रेडीनेस. गवर्नमेंट की वजह से मुझे ये अलग लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको टिक कर रही हूँ. टर्न्ड इट इनटू एन इंटरनेशनल पैरी. पोर्ट्रेट इज एन आउटकास्ट इज अ ग्लोबल लेवल. प्रेजेंटेड इज अ ग्लोबल डिसग्रेस. मेड इट अ सिंबल ऑफ एन आउटसाइडर फॉर द whole world. Converted into a global potent symbol. Russia's Ukraine war जो है had brought an untold human and economic cost and turned it into an international pariah, and presented a global disgrace, made it a symbol of outsider for the worldwide, converted into a global potent symbol, outcast at a global level. तो outcast, disgrace, converted into a global potent symbol. ये मुझे रॉन्ग लग रहा है. इसमें क्या करना है?
मैचिंग करना है. माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन, ए का डी से. माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन हैज बीन डिटेक्टेड इन ह्यूमन ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम, which scientists found that tiny particles are almost 80% of the peoples tested. A or D. Huge amounts of plastic waste are dumped in the environment, and microplastics now contaminate the entire planet from the summit of Mount Everest with the deepest ocean. C, F सही लग रहा है. Researchers are concerned as microplastics cause damage to human cells in the laboratory. And B का E. And air pollution particles are already known to clutter the body and cause millions of early deaths in a year. Microplastics cause, which scientists found that the tiny particles in almost 80% of the people tested. मुझे AD और CF सही लग रहा है. BE का कुछ एग्जैक्ट नहीं लग रहा. Entire planet from the summit of Mount Everest with the deepest ocean. CF भी सही है. Air pollution particles are already known to the body. Organic food consumptions may reduce the risk of allergic disease and of overweight and obesity, but the evidence is, अगर A का D हो सकता है, but the evidence is not conclusive due to the likely residual confounding, as consumers of organic food tend to have a healthier lifestyle overall. तो मुझे A और D सही लग रहा है यहाँ पे. C, F चेक करते हैं. In the organic agriculture, use of pesticides is restricted, while residues in conventional fruits and vegetables constitute conventional fruits and vegetables constitute the main source of human pesticide exposure. मुझे CF और AD यहाँ पे लग रहे हैं. एक बार ये भी चेक कर लेते हैं. B का E. However, animal experiments suggest that identically composed feed from organic and conditional production impacts in different ways on growth and development. While residues in conventional fruits and vegetables, मुझे यहाँ पे but the evidence is not conclusive due to the likely residual. A और D तो सही है, but CF में थोड़ा confusion लग रहा है कि while residues, pesticide exposure की यहाँ बात कर रहे हैं. While residues in conventional fruits and vegetables constitute the main source of human pesticide exposure. CF सही है. चलो देखते हैं. Sati, good women or chaste women is the Indian custom of a wife, A का D, immolating herself either on the funeral pyre of her dead husband in other fashion soon after his death. तो A, D सही लग रहा मुझे यहाँ पे. It is sometimes likened to the myth of the Hindu goddess Sati, who burned herself to death in a fire that she created through her yogic powers. तो ये सही है. Cotton fabric is breathable and transmits moisture away from the body and is an absorbent and removes liquid from the skin like a towel according to cotton. A और D सही लग रहा है यहाँ पे. B, E चेक करते हैं. Cotton clothing protects against heat in the summer and cold in the winter by providing thermal insulation as the cotton fabric traps in air and fabric. तो B, E भी सही लग रहा है. Further allowing for more air to be trapped. The cotton fibers is clothing hold the fabric away from the skin, further allowing for more air to be trapped between the skin and the fabric, which helping with insulation comfort. But AD और BE सही लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये वाला थोड़ा रॉन्ग लग रहा है. which helping with, यहाँ पे कुछ रॉन्ग लग रहा है मुझे. Diary writing is a personal form of writing where a person maintains a diary to write about his या her personal. तो A और D सही है.
A journal composing can be founded on an encounter, a scene, a portrayal of a certain occasion, or some other thing of the moment that author links with the writing in his journal. तो बी ई सही है. अगर ये दोनों सही है तो तीसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है. बाकी देखते हैं. 22 नंबर छोड़ा है यहाँ पे. कौन सा फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज. देखते हैं यहाँ पे G7 के बारे में, क्योंकि पैसेज बहुत लेंदी है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे ही चेक कर लेती हूँ. 1976 के बारे में कहाँ मेंशन है. UNSC is one of the new institutions of global governance. UNSC. Global governance is not democratic. The G7 was formed in 1976. यहाँ पे लिखा है कि the United States ये सारे formed the G7 1976 and had to immediately address the problem of inflation. Discuss economic concerns, what is included in inflation, recession. Following the organization of this. तो G7 was formed in 98 तो सही है. Had to immediately address the problem of inflation. तो inflation तो ठीक है, but recession भी तो है, तो ऐसा होगा कि wrong हो जाएगा I think. तो सेकेंड अगर रॉन्ग होगा. UNSC is one of the new institutions. India has been supported by world powers on its take on Russia. Yeah, India is being hectored by officials from US and UK to support their sanctions on Russia. Its take on Russia. Global governance is not democratic. ओके, इसको मैं स्किप ही कर देती हूँ, बाद में इसको देख लेंगे क्वेश्चन को. यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड है. According passage, the following are the global problems addressed by United Nations General Assembly. ये क्वेश्चन करना पॉसिबल है. देखते हैं इसमें कहाँ मेंशन है. ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्या हैं. यहाँ पे हंगर, ठीक है, पॉवर्टी, विमेन्स राइट्स, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज. विमेन्स एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ विमेन्स राइट्स है. A single food supplement would not boost your immunity overnight, and a whole foods based nutritious diet is crucial. A whole foods based nutritious diet is crucial to maintain optimal function of immune system. इसमें नो एरर कर देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई एरर लग नहीं रही है. A whole food based, आई थिंक फूड बेस्ड होगा. फूड्स बेस्ड रॉन्ग है क्या. ओके, मैं सी ऑप्शन कर दे रही हूँ, मेरे को श्योरिटी नहीं है इस क्वेश्चन में. इसको ट्राई करते हैं. फॉर इट टू अचीव ट्रेड टेक एम्स टू इंश्योर द एफिशिएंट ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ गुड्स. फर्स्ट लेवल लिखा, सेकेंड लेवल, इसका मतलब सी के बाद में डी आएगा. और इंश्योर टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स ट्रेड कैन बी अंडरस्टूड इन 2 layers. तो इसका मतलब इसके पहले एफ आएगा, तो एफ सी डी हो जाएगा. ग्लोबल कोऑर्डिनेशन एंड इक्वल एक्सेस टू ट्रेड टेक व्हेन लेजिटाइज ऑन दीज टेक्नोलॉजीज. तो ए सी डी एफ सी डी हो गया. ट्रेड टेक एम्स टू मुझे लग रहा है बी फर्स्ट होगा, और यहां पे टेक की बात कर रहा है तो ई होगा. ठीक है, मुझे लग रहा है बी ई और लास्ट में ए होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग विल इमीडिएटली फॉलो स्टेटमेंट डी. डी को कौन फॉलो कर रहा है, ए. फॉलोइंग विल इमीडिएटली प्रोसीडेड स्टेटमेंट एफ. ई.
इसका मतलब मैंने कुछ रॉन्ग किया है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रीसीडेड स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसको मैं स्किप कर देती हूँ। पोजीशन सी, ओके इसको नहीं करते हैं क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसमें आ नहीं रहा है। बट इतना पता है कि एफ सी डी तो बनेगा। या फिर बी ई ए एफ सी डी, ऐसा भी हो सकता है। बट चलो इसको स्किप कर देते हैं, फिर मुझे ये वाला सही लग रहा है, बाकी चेक कर लेंगे बाद में। तो नेक्स्ट है क्वांट। यहाँ सारी वैल्यू परसेंटेज में दी गई हैं, और विच ऑफ द 2% गॉट द सेम अमाउंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरी पाई चार्ट को लिख लेंगे। 3x - 3 + 3x + x + 10 + x + 11 और प्लस 4x - 2 है ना। तो 3 3 6 7 1 8 4 12x और 10 10 10 20 21 और 2 ये है 3 ये 3 2 5 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 16, तो प्लस का 16 इक्वल्स टू 100 के बराबर होगा। और यहाँ पे 16 जाएगा, 8 बचेगा, 12 7 84। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। x की वैल्यू अगर 7 आ जाएगी तो उमा कितना आ जाएगा, 7 3 21 - 3 18 और ये 7 3 21, प्रेम आ जाएगा 21 और ये 7 है ना, तो 10 7 17 आ जाएगी रिंकी। और श्याम कितना आ जाएगा 7 1 18 और तनु आ जाएगी यहाँ पे 7 4 28 - 2 26। बस इतने ही है। तो ये सारे लोगों की वैल्यू आ गई यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द 2% गॉट द सेम अमाउंट। तो एक ये यू वाला और एक एस। यू एस मतलब श्याम और उमा। द अमाउंट विच प्रेम गॉट इज व्हाट % ऑफ द अमाउंट ऑफ उमा गॉट। प्रेम हो जाएगा 21, उमा हो जाएगी 18, तो 3 7 21 3 6 18 परसेंटेज में पूछ रहे हैं 200 50 7 5 35। 350 को 3 से भाग करेंगे तो 1 1 से एक ही ऑप्शन है 116 10 प्लस समथिंग। द एवरेज ऑफ द अमाउंट विच रिंकी श्याम एंड तनु गॉट। रिंकी श्याम तनु, तो 7 8 7 15 5 20 21 2 2 4 1 5 6 61। एवरेज इसका जो है वो बराबर है 23790 के। डिड उमा गॉट, उमा का निकालना है 18 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा 61 × 3 18 बराबर निकालना है यहाँ पे। आई थिंक कहीं ना कहीं डायरेक्ट कैंसिल होगा क्योंकि होल नंबर आंसर आ रहे हैं, कैंसिल कर लेते हैं इसको। 61 6 3 18 6 4 24 3 बार जाएगा 3 1 3 3 7 3 4 18 13 में 8 गए 5 9 बार जाएगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 इतना आ जाएगा इंटू 3 0 0 3 और 27 के साथ 3 3 10 11 गुणे 18 18 7 126 8 7 56 के 6 यूनिट डिजिट में 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट विच रिंकी एंड श्याम गॉट। रिंकी 17 है श्याम 18, तो एक बराबर वैल्यू 1200 दी गई है। व्हाट अमाउंट डिड तनु गेट, 26 निकालना है, तो 12 6 72 के 2 12 दूना 24 और 7 31। द अमाउंट ऑफ द वन हु गॉट द लीस्ट अमाउंट इज व्हाट %। लीस्ट किसका है 17 है, तो 17 जो है वो कितना % होगा, हु गॉट द हाईएस्ट अमाउंट। हाईएस्ट 26 है, ये इसका कितना % है बताना है। तो इसको पूरा डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 17 5 85 13 से 13 5 65 13 6 78 और 7 0 65 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो पहली आई तो हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इसको स्किप कर देंगे। ये कर लेते हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days। A can do a piece of work in 60 days. B can do the same work in 120 days. C can do the same work in 120 days.
इन हाउ मेनी डेज 3 विल 80% ऑफ द वर्क कैसे कंप्लीट करेंगे, 120 मान लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका 80% कितने दिन में करेंगे, 2 1 3 1 4, 4 3 12, 0 से 0 गया, 8 3 24। इसको स्किप कर देंगे, बाद में देखेंगे, पहले कर लेते हैं नंबर सीरीज। 2 से हुआ है 10, क्या डिवाइड लगेगा, देखते हैं। 2 2 4 6, 20 प्लस 10, 30 2 60 प्लस 8, 8 हो रहा है यहाँ पे, और 2 8 16 के 6, 2 6 12 13, 136। अगर 2 से गुणा करो ना तो प्लस 6 हो रहा है, नहीं माइनस 6 होगा, 136 हो रहा है ना तो माइनस 6 होगा, यहाँ पे 8 है। डिफरेंस लेते हैं तो प्लस 8 प्लस 20 प्लस 38 प्लस 10 में 8 गए 2, 12 में 6 गए 6, 62। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 12 आएगा, 8 और 1 18 आएगा, 12 में 8 गए 4 और 5 में 2 गए 3। हाँ ठीक है, तो 12 6 18 6 24 6 30, यानी 30 प्लस करोगे तो 2 6 3 9 92, तो लास्ट में आएगा 9, 2 आएगा और 9 3 12 के 2, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है, डबल 2। नेक्स्ट है 8 कम 8 प्लस 1 9, 9 दूनी 18 माइनस 1, नहीं लगेगा डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, डिफरेंस लगाते हैं क्योंकि बहुत क्लोज नंबर है। 1 9 8 17 और 6 3 9, 9 आएगा। ये कर सकते हो 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट 4 का क्यूब होगा, 4 चौक 16 चौको 64 और 43। ओके देख लेते हैं आगे। 13 में 6 गए 7 और 13 में 7 गए 6 और यहाँ पे बचेगा 1, 17 आ रहा है ना, तो नहीं लगेगा ऐसा कुछ। अच्छा ये डायरेक्ट हो रहा, 9 8 17, फिर 17 और 9 26, 6 7 6 13, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो 6 3 9 आएगा लास्ट में, और एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्ट उसी से हो रहा है। 25 प्लस 1 और 26 4 5 6 9 प्लस 9, 35 5 40, 20 5 25, 1 का स्क्वायर 3 का 5 का 7 तो 49 हो रहा है, नेक्स्ट हो रहा है 49 के बाद कितना होगा 81 है ना, 1 3 5 7 9 9 81 और 109 190 आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, इसमें लगेगा क्या, नहीं लगेगा, बहुत क्लोज नंबर है, तो अगर इसको करें तो प्लस 49 हो रहा है पहले, प्लस 1 7 में 5 के 2 1, किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, देन 11 का स्क्वायर, इसका मतलब प्राइम नंबर चल रहा है, तो 7 11, नेक्स्ट 13 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर के बाद 17 का स्क्वायर, तो 7 11 13 17, नेक्स्ट 19 का स्क्वायर 361 प्लस करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। 96 है तो इसको डिवाइड किया गया है प्लस 2 से, तो 48 फिर इंटू 1, फिर 1.5 करेंगे, 5 5 10 24 ने 72, हाँ हो रहा है 1.5, देन इंटू 2 किया गया है, ये कर सकते हो इसको 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1/2 1 1.5 2, तो 2 2 ने 4 2 से 14 144। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं, क्लोज नंबर है, 3 से 7 हुआ है यानी माइनस प्लस का 4, देन प्लस का माइनस हुआ है, देन 7 में 6 और 10 में 9 गया 1 16 है ना, और तो ये हो गया 4 ये 16, नेक्स्ट देखते हैं, प्लस हुआ है यहाँ पे 11 में 5 गए 6 और 8 में 5 गए 3 36, तो 4 ये 6 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 4 6 प्लस है 10 माइनस होगा तो 8 का स्क्वायर, यानी 64 माइनस करेंगे, उसके बाद 10 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो 100, यहाँ पे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर रही हूं मैं, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस देन 36 प्लस हो गया, 6 के बाद
8 है 64, माइनस करेंगे और यहाँ पे अगर 100 प्लस करेंगे, कुछ तो गलत हो रहा है, एक बार देख लेती हूँ। 5 में 4, 11 में 5 गए 6 और यहाँ पे 4 आएगा और 15 में 9 गए 6, यहाँ 6 आएगा। तो 2 का स्क्वायर, ये ऐसे 4 चौक 16, चौको 64 और इसका 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 24 से 25, ये यहाँ पे आएगा और ये प्लस हो रहा है, देन ये माइनस हो रहा है। इसका 4 टाइम्स, तो 4 चौक 24 के 4, 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, तो 9 4 13 के 3, लास्ट में 3 आएगा और 9 2 11 12, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन है 3 वाला, तो ये आंसर होगा। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स राइट डाउन इन रैंडम ऑर्डर, इसको स्किप ही कर देते हैं, बाकी देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन। ये है यहाँ पे DI एक है और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बोटल्स, डेटा नोट कर लेते हैं तो इजीली हो जाएगा। AB CDEF, number of manufactured bottles, number of manufactured bottles, तो टोटल कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 10 20 30, 130, देन 10 20 70 और 210, यहाँ पे कितना 10 20 30 180 और 160 और देन यहाँ 10 कम करोगे तो 90। इसके बाद परसेंटेज ऑफ बोटल्स मैन्युफैक्चर ओवर द डिफेक्टेड बोटल, परफेक्ट बोटल्स ओवर द डिफेक्टेड बोटल, परसेंटेज ऑफ परफेक्ट बोटल्स ओवर द डिफेक्टेड बोटल्स, यानी रेशियो कह सकते हैं डायरेक्ट। इसका मतलब है कि परफेक्ट का डिफेक्टेड से रेशियो है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 160%, यानी 16:10। देन यहाँ पे है 10 50 10 60 70 80, उसके बाद है 200, इसका मतलब 2/100 यानी 2:1। उसके बाद यहाँ पे 140, उसके बाद यहाँ पे 50 10 60, तो 6:10। यहाँ पे कितना 10 20 30, 8:10, ये इतना हो जाएगा। इसको कैलकुलेट ही कर लेती हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे होंगे। तो परफेक्ट और डिफेक्टेड 7 और 5, 3 और 5, 4 और 5, 5 9, तो ये 40 और 50 हो जाएगा। 5 3 8, 2 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 5 12, 15 7 135, 15 चक्का 90, 15 7 105 और 15 25 75 और 2 1 3, तो 7 7 दूनी 14, 7 1 7 और 9 5 14, 5 70, 5 9 45, 5 25 और 8 5 13, तो ये 80 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोटल्स मेड बाय बी? डिफेक्टिव बोटल्स बाय बी यानी 25 एंड द नंबर ऑफ परफेक्ट बोटल्स मेड बाय कंपनी एफ, एफ के द्वारा परफेक्ट 40, कितने का डिफरेंस हो जाएगा 15 का। द नंबर ऑफ परफेक्ट बोटल्स मेड बाय कंपनी सी, सी के द्वारा परफेक्ट 140 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ परफेक्ट बोटल्स मेड बाय कंपनी ए, 80 से कितना लेस है मोर है, तो ये कितना हो गया 3/4, 25 ने 75। What is the average number of defective bottles made by all 6 company? इन सबको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 75 और ये 25, 100 200 और ये वाला 300, तो 100 200 370, 5 से डिवाइड करोगे 6 से, तो 6 छक 36, 6 कम 6 61 पॉइंट समथिंग। वो मैन्युफैक्चर द हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट बोटल, परफेक्ट हाईएस्ट किसका है 140 आई थिंक है हाईएस्ट, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंबाइंड नंबर ऑफ परफेक्ट बोटल्स बाय बीई, 45 और 60,
6 4 10। टू द कंबाइंड नंबर डिफेक्टिव वोटर्स बाई AC, डिफेक्टिव A और C 7 5 12, तो 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 को 20, 3 7 21, 3 8 24, 7 8। देखते हैं कोई सिंप्लीफिकेशन तो नहीं है, वरना उनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है 105, 21 25 105, 11 6, और ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का 16 आ जाएगा। 8 5 40, 8 5 13, माइनस का, तो 21 इन दोनों से बड़ा है, 5 इसके बराबर, इससे बड़ा, तो x ग्रेटर देन इक्वल y, x ग्रेटर देन इक्वल y। यहाँ पे 19 25 95 और 9 5 14 24, तो 19 और 5 हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे। 22 पंचे 110, और कितना हो जाएगा 11 2 और 5, 11 2 22। ओके, तो 22 और 5 हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस, तो 22 इन दोनों से बड़ा है, 5 इसके बराबर, इससे बड़ा, तो y ग्रेटर देन इक्वल x। यहाँ पे 192, 2 बड़े दोनों 18, 2 6 12, 12 8 96, 2 2 4 2 8, 12 3 2 6 2 12, 26 लाना है, तो 3 2 6 2 बाद में 24, 2 2 4 2 8, नहीं 2 2 4 2 8 16, 3 2 6 2 12, नहीं हो रहा, 3 2 6 2 12, 2 2 4 2 8 16, 192, 2 3 6, 2 2 4 2 8 16, 2 2 4 2 8, 3 6 2 12, 3 6 2 24। ओके, माइनस करके करना है ना, तो 3 2 6 2 12 2 24, 2 2 4 2 8 16 2 32, 2 2 4 2 8 16 32, 3 2 6। ओके, तो 32 और 6 हो जाएगा ना, तो ये माइनस का और ये प्लस का। 11 गुणे 3, 5 गुणे 2, 37 लाना है, तो 5 के 15, 11 में 22, नहीं 11 के 33, और 5 दूनी 10, 5 3 15, और 11 दूनी 22। हाँ यार, इससे आ तो रहा है, तो 22 और 15 हो जाएगा, ये दोनों माइनस के, तो 6 इन दोनों से बड़ा है, 32 से, फिर ये दोनों बड़े हैं, तो आंसर CND हो जाएगा। इसमें तो कुछ चेक नहीं करना है, x ग्रेटर देन y हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 21, 21 2 42, 7 6 42, 7 6 13, है ना, 7 6 42, 7 6 13, माइनस हो जाएंगे। 15 2 30, 6 5 30, और 6 5 11, तो कौन सा बड़ा होगा, -5 क्या इन दोनों से बड़ा है, -6 इसके बराबर, इससे बड़ा है, तो y ग्रेटर देन इक्वल x। नेक्स्ट है 16 7 112, और 7 6 13 23, तो 16 7 दोनों प्लस के हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 14 8 14 9 126, 9 4 7 दूनी 14, और 3 3 का 9, 15 लाना है, 7 21 6, 21 और 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ये माइनस का और ये प्लस का 7 से, तो कौन सा बड़ा होगा, ये दोनों पॉजिटिव है, इससे तो बड़े होंगे ही, और 7 6 42 ये हो जाएगा, और 9 7 63 है, और ये भी इससे बड़ा होगा, तो x ग्रेटर देन y रहेगा। और बाकी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। 1 मिनट बचा है, इसमें क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, ये भी नहीं बनेगा, इसके जल्दी तो होगा नहीं, ये भी नहीं करना है, ये वाला देखते हैं। Among इतना स्टूडेंट्स 30% आर गर्ल्स, 7200, 30% गर्ल हैं, तो बॉयज कितने होंगे 70%। The age of 60% of girls and 60% of boys are less than 15. Less than 15,
60% ऑफ गर्ल्स, तो ये कितना आ जाएगा, कितना, इसका 60% यानी 216 इंटू 6, ये हो जाएंगे। पर रेशियो नंबर ऑफ लेस देन 15 स्टूडेंट लेस देन 15 टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर देन 15 और ना। ओके, तो इसका 70%, ये हो जाएगा इतना, ये भी लेस देन 15 है, और इसका 60%, यानी इसकी वैल्यू भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ओके, टाइम हो चुका है ओवर। तो अभी करते हैं पजल। पहली पजल स्किप कर देते हैं क्योंकि मैं हमेशा स्टक हो जाती हूँ पहली पजल में। पहले इजी क्वेश्चंस पिक करते हैं, ये कर लेते हैं। देयर आर ओनली 9 मेंबर्स इन अ फैमिली। एम इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ जी। पी इज द मदर ऑफ आई। आई हु इज द सिस्टर ऑफ यू। जी इज द डॉटर ऑफ एन। जी डॉटर है एन की। बी इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। पी के फादर इन लॉ है बी। बी हैज थ्री ग्रैंड डॉटर्स। ठीक है। और ए इज द ब्रदर ऑफ एस। एस हु इज द वाइफ ऑफ एन। और ऊपर क्या बोला था कि मैटरनल ग्रैंड मदर है, और एस कह रहा है यहाँ पे एस हु इज द वाइफ ऑफ एन, मैटरनल है, तो इसका मतलब एस यहाँ पे आएगा, ठीक है, और एन यहाँ पे आएगा। P is the aunt of G। जी यहाँ पे कहीं आएगा, बट नॉट एन। अच्छा, बट डज नॉट हैव अ सिस्टर। P is the aunt of G, but not P is the aunt of G, but N does not have a sister। ओके, N को सिस्टर नहीं है। ये इतना बन गया, 9 लोग हैं, और ए एस का ये है कि एस का भाई है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। पी आंट है, तो इसका मतलब इस वाले में आएंगे, और पी के कोई भी सिस्टर नहीं है। इसका मतलब है कि पी को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ये अगर इससे मैरिड हो, पी ए से, ठीक है, और पी का जो ये है यहाँ पे अगर बी हो जाए तो ये बन जाएगा, और पी से नीचे यहाँ पे आई और यू, तो ये भी लड़की होगी क्योंकि 3 इसने बोला था कि बी की ग्रैंड डॉटर्स हैं, तो ये बन जाएगी कंडीशन। सो हाउ इज ए रिलेटेड टू आई। ए आई से कैसे रिलेटेड है, फादर। व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। एम इज द मदर ऑफ ए। हाँ, ये सही होगा। एस इज अ आंट ऑफ यू, ये भी सही है। बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ जी, ये भी सही है, तो ऑल आर करेक्ट। हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ जी। जी के ग्रैंड फादर कौन है, बी हो जाएगा। बी मतलब एम्स हस्बैंड। ओके, यहाँ पे इसको डेफिनेटली ट्रू करना है। वाई ग्रेटर देन जेड। वाई ये है, जेड ये है, इसका मतलब लास्ट वाला ग्रेटर देन होना ही पड़ेगा, और बी ग्रेटर देन इक्वल डी, तो यही एक ऑप्शन केवल हो सकता है। जी ग्रेटर देन इक्वल एच को, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करना था, इसको ट्रू करना था, इसको फॉल्स करना है। जी ग्रेटर देन इक्वल एच, अगर हम ये वाला स्टेटमेंट लेते हैं तो भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। जी ग्रेटर देन इक्वल एच, लास्ट वाले 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। डी ग्रेटर देन इक्वल एफ, अगर ये लेते हैं तो एफ ग्रेटर देन डी हो जाएगा। ये वाला आई थिंक जी ग्रेटर देन इक्वल एच, इससे डेफिनेटली रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या करना है, इसको डेफिनेटली ट्रू करना है। डी ग्रेटर देन आर। ओके, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, डी ग्रेटर देन आर इसमें भी नहीं होगा, सिर्फ यही एक ऑप्शन पॉसिबल है। व्हाट इज द कोड फॉर नॉट टू गो।
नॉट यहाँ पे आया है, नॉट यहाँ नहीं आया, नॉट यहाँ भी नहीं है, नॉट यहाँ पे है, तो क्या हो सकता है इन दोनों में कॉमन? जे, ये हो सकता है जे वाला। पी से ऊपर कोई भी नहीं है और 1 से वहां पे कोई नहीं है, इसका मतलब नॉट का तो ये होगा। 2 का यू गुड, टू गो का यहां से ले सकते हैं, इसमें से 2 एलिमिनेट कर दो, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका मतलब ये आएगा और ये आएगा। नाउ का कोड क्या है? नाउ यहाँ पे नहीं आया, नाउ यहाँ पे भी नहीं आया, नाउ सिर्फ आया है यहाँ पे और कहीं भी नहीं आया है, तो ये वाला हो सकता नहीं होगा। 7 वाला ये कंसिडर कर सकते हैं। 2@11 ये भी नहीं होगा, और पॉक्स वाला ये भी नहीं होगा। व्हाट इज कोड फॉर दिस? 3#21 यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे 3 नहीं आया है और यहाँ पे भी नहीं आया। इन दोनों में कॉमन क्या है? यू का तो नहीं होगा। गुड का हो सकता है, यू का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी दिया है। गुड का हो सकता है, 2 का भी नहीं होगा और गो का भी नहीं होगा। यू yet is written as this. What is code for go is? गो इज का क्या होगा? गो यहाँ पे आया है और गो यहाँ पे आया है, इन दोनों में कॉमन क्या है? हैश XTS ये हो सकता है। गो यहाँ पे है, इन दोनों में कॉमन है। 7 तो कॉमन नहीं है। 2 वाला ये हो नहीं सकता है, POX भी नहीं होगा, तो ये होगा XTS। इज का कोड क्या होगा? इज यहाँ पे आया है, तो %@ ये तो होगा नहीं, और जे ये भी नहीं होगा, पॉक्स वाला भी नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर यट? यट यहाँ पे नहीं आया, यट यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ, तो इन दोनों में तो आइदर वाला हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं डायरेक्ट। 9 persons on 3-story building different flats, इसको बाद में करेंगे, फ्लैट एंड फ्लोर वाला, इसको भी बाद में करती हूँ, पहले इजी क्वेश्चन पिक करते हैं, वरना जो इजी वो भी स्किप हो जाएंगे। इफ इन द नंबर 2, 5 इतना ऑल odd digits are increased by 1, 2, 5, 7, 6, 2, 5, 7, 6, 3, 1, 2, 5, 7, 6, 2, 5, 7, 6, 5, 1, okay, 2, 5, 7, 6, 5, 3, 1, 4, 8, 5, 3, 7, 2. Odd digits increased by 1. And even digits decreased by 1. Then find the sum of the cube of the 6 digits from the left. Then find the sum of the cube of the 6th digit from the left. First, second, third, fourth, fifth, sixth. And cube of first digit from the right. 67. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Cube of first digit from the right hand. इसका मतलब कुछ मिस्टेक है क्या? All digits increased by 1 and all even digits are decreased by 1. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 3 है तो 3 को इंक्रीज करेंगे तो 64 ही आएगा ना. एंड इवन डिजिट्स आर डिक्रीज्ड बाय 1 तो ये 1 हो जाएगा, +1. लेफ्ट हैंड एंड द क्यूब ऑफ द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड. अरे यार 65 ऑप्शन में है तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, टाइम वेस्ट हो गया फालतू में. तो इसमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है. 8 पर्सन्स हैं वर विजिटेड इन डिफरेंट डेजिग्नेशंस और इसमें दिया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे ऊपर जीएम होगा, देन डीजीएम, एजीएम, मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, पीओ और क्लर्क. ये ऑर्डर रैंकिंग वाला बन जाएगा आई थिंक. ट्राई करते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है. ये बिलोंग करते हैं डिफरेंट सिटी से. टी बिलोंग्स टू मुंबई,
टी मुंबई से बिलोंग करता है एंड इज सीनियर टू एटलीस्ट 3 पर्सन्स, कम से कम 3 लोगों से सीनियर है, 1 2 3, इसमें तो मुंबई नहीं आएगा। द पर्सन हु इज फ्रॉम ईटानगर इज इमीडिएटली जूनियर टू टी, इससे जस्ट जूनियर होगा जो ईटानगर से है, ठीक है। आर बिलोंग्स टू रांची, आर रांची से है एंड इज एन असिस्टेंट मैनेजर, ये तो साफ साफ दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं। आर बिलोंग्स टू रांची, असिस्टेंट मैनेजर। P is from Kanpur, third senior among all, third senior, first senior, second, third, तो P हो जाएगा यहाँ, कानपुर हो जाएगा यहाँ पे। Y belongs to गोवा, Y गोवा से है। S belongs to शिमला, S शिमला से है। And both Y and S are junior to R, तो इसका मतलब है Y और S यहीं पे आएंगे। The person who belongs to Delhi is senior to the one who belongs to ईटानगर, ईटानगर से दिल्ली ऊपर आएगा, सीनियर है। X बिलोंग्स टू ओटी, X जो है ओटी से है एंड इज जूनियर टू ओनली 1, केवल एक से जूनियर है, बाकी सबसे सीनियर है। तो X यहाँ जाएगा, ओटी यहाँ पे आ जाएगा। द पर्सन हु बिलोंग्स टू गोवा इज नॉट द जूनियर मोस्ट, यानी गोवा यहाँ पे नहीं आएगा, तो इससे कंफर्म हो गया कि Y यहाँ पे आएगा, गोवा यहाँ पे आएगा, S यहाँ पे, शिमला यहाँ पे आएगा। X ऊटी हो चुका है। दिल्ली ईटानगर के ऊपर आएगा और T जो है मुंबई से है, तो T यहीं पे आएगा, मुंबई यहाँ पे आएगा, ईटानगर यहाँ पे आएगा और इसके ऊपर दिल्ली यहाँ पे आएगा। और क्या चीज दिया हुआ था यहाँ पे, पर्सन्स कौन से आएंगे, Q बचा है और Z बचा है, और Q और Z के बारे में कुछ भी नहीं दिया। आई थिंक QZ यहाँ पे भी आ सकते हैं और QZ यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट P, P के बारे में कौन सा ट्रू है। P इज बिलोंग टू T, नहीं, P इज सीनियर मोस्ट, ये भी नहीं होगा। P इज एजियम, ये वाला सही है। हाउ मेनी पर्सन्स आर जूनियर टू T, 1 2 3 4। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीनियर टू Z, cannot be determined. Who is the junior most person, S। How many persons between X Y, 1 2 3 4। ओके, तो ये तो बन गई पजल, और ये वाली ट्राई करते हैं। 8% in 2 parallel rows, 8 persons 2 parallel rows are sitting and facing the south, whereas यानी जो साउथ में है वो M and O, P है, XYZ W XYZ जो है वो रो में है, नॉर्थ में, दे आर लाइक डिफरेंट कलर्स। P सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स, P जो है वो एक एंड पे, मान लेते हैं P यहाँ पे है एंड फेसेस द पर्सन हु लाइक्स रेड, रेड पसंद है। M सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, इससे पता चल जाता है कि P यहाँ पे नहीं होगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, P यहीं पे होगा, और M सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, M यहाँ पे होगा, यहाँ पे रेड होगा। एंड लाइक्स ग्रीन, इसको ग्रीन पसंद है। द पर्सन हु लाइक्स वायलेट कलर इज फेसिंग द वन हु लाइक्स येलो, वायलेट के सामने येलो होगा। X लाइक्स वायलेट कलर, X इसी में आएगा, X लाइक वायलेट कलर एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Y, तो Y के इमीडिएट राइट में X यहाँ भी हो सकता है, Y के इमीडिएट राइट में X यहाँ भी हो सकता है। X लाइक वायलेट कलर एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Y, Y के इमीडिएट राइट में X है। अरे मेरे को, मैंने देखा नहीं, इसमें लाइट नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है लाइट की, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। आई थिंक मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि लाइट से नहीं दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बिल्कुल अंधेरा ही हो गया है।
ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत, बहुत दिक्कत है लाइट की। थे W सिट्स बिटवीन X Z, X और Z के बीच में W है। आई थिंक Y X और W Z, अगर ऐसे ले लेते हैं तो X जो है वायलेट है तो यहाँ येलो हो जाएगा। द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज कलर इज फेसिंग द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर, ऑरेंज व्हाइट के सामने होगा। द वन हु लाइक्स व्हाइट का थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक ब्लैक कलर, ब्लैक के लेफ्ट में थर्ड, अगर ये ब्लैक होगा इसके लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे ऑरेंज होगा। व्हाइट का थर्ड टू द, यहाँ पे व्हाइट होगा और यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा। एन डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड, तो एन यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा। तो ये सारे कलर हो गए, रेड वॉयलेट ऑरेंज, एक कलर बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। वो अमंग द फॉलोइंग लाइक व्हाइट कलर इज PNOO हो जाएगा। वो अमंग द फॉलोइंग फेसेस द वन हु लाइक्स ग्रे कलर, तो ग्रे ये हो जाएगा, उसको फेस कर रहा है M। फोर ऑफ द फाइन M और W सेम है, NX ये भी ठीक है। जेड ग्रीन ये डिफरेंट होगा, Y ब्लैक और सारे सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट X लाइक्स वायलेट कलर, सही है। X फेसिंग है, ये भी सही है। X इज द वन हु लाइक्स येलो कलर फेस कर रहा है, ये भी सही है। X इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स ऑरेंज कलर, ये रॉन्ग है। विच कलर डज Y लाइक्स, Y को रेड पसंद है। तो यहाँ पे ये इतना बन गया है, बाकी काफी लाइट की वजह से डिस्टर्बेंस हो गया है, बट ट्राई करते हैं ये वाली एक पजल। इस पे तो 3 क्वेश्चंस हैं इस पजल पे, इसको ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। ये वाला देखते हैं। 9 पर्सन सिटिंग इन 3 स्टोरी बिल्डिंग, डिफरेंट फ्लैट्स, ग्राउंड इज 1, 3 2 1, 3 फ्लैट्स होंगे। 2 कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, अगली बार से लाइट का इंतजाम करके फिर चालू करेंगे। देयर आर 3 फ्लैट्स, फ्लैट 1 इज वेस्ट यानी 1 और ये 2 और ये 3, 1 2 3। देखते हैं, हो सकता है बन जाए पजल। P लिव्स इन एन इवन नंबर फ्लोर एंड इवन नंबर फ्लैट, इसका मतलब कंफर्म है कि P यहीं पे होगा, ठीक है। E लिव्स अबव P बट नॉट इन द सेम, एक बार E को यहां मान लेते हैं, एक बार यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। O लिव्स इमीडिएटली बिलो D, O D के जस्ट नीचे रहता है। Who लिव्स ऑन इन द सेम फ्लोर एज M, D M साथ में रहते हैं। B लिव्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ D, नॉर्थ वेस्ट में तो इसका मतलब D इधर नहीं आएगा, अगर D यहां पे आएगा। O लिव्स इमीडिएटली बिलो D, इसका मतलब D यहीं पे हो सकता है, O यहां पे हो सकता है, और सेम फ्लोर एज M, M यहां हो जाएगा। B लिव्स इन नॉर्थ वेस्ट, B यहां हो जाएगा। अगर B को इसमें ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी आई थिंक, अगर B यहां ले लें, D यहां, O यहां, M यहां, ये हो सकता है। C लिव्स बिलो M, C लिव्स बिलो M बट नॉट इन द सेम, तो C यहां आ जाएगा, C यहां आ जाएगा। A लिव्स इन द साउथ वेस्ट ऑफ M, साउथ वेस्ट, N के साउथ वेस्ट में A है। O N लिव्स इन द सेम फ्लैट, सेम नंबर फ्लैट, O N सेम नंबर फ्लैट, तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। C यहाँ पे था, A लिव्स इन साउथ वेस्ट, A N के साउथ वेस्ट में, तो ये O N सेम फ्लैट में, अब ये सही है। Who among the following lives on the floor 1, तो इसमें से A रहता है फ्लोर 1 पे। Which of the following is true about B, B lives on फ्लोर नंबर 3, सही है। B lives in the flat 2, सही है। तो अगर 2 सही है तो सारे सही होंगे। 4 of the 5 from out of the 5 is 4 same, E N P A O, तो मुझे P इवन पे है, बाकी ऑड पे, इसलिए अलग होगा। फ्लैट 2 में कौन रहता है, B P C, तो C हो जाएगा। Which of the following is not true about N, N lives in flat 3, सही है। N lives immediately above D, ये भी सही है। N lives north east of M,
एन के नॉर्थ ईस्ट में, ये भी सही है। एन लिव्स इन नॉर्थ वेस्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा। विच इज नॉट ट्रू पूछ रहा तो रॉन्ग वाला बता देंगे। तो 27 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं। और एक पजल मेरी पहली वाली स्किप हो गई है, 36 सेकंड बचे हैं, इसमें तो कुछ नहीं होगा। और 3 क्वेश्चन, ये वाली एक पजल है, इसका स्किप हो गया है। और थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम थी, तो आई होप कि थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। और ये बाहर से लाइट आ रही है, उसी से मैं कर रही हूँ। बाकी लाइट की बहुत दिक्कत है, इन्वर्टर भी खराब हो गया है। सो आई होप कि आप मैनेज कर लोगे। मैं बहुत अच्छे से कर रही थी, वो सारा लास्ट में खराब हो गया, वो पता नहीं चल रहा। अभी मैं देखूंगी कहाँ से वीडियो में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका कि ओवरऑल क्या रहता है स्कोर। सबमिट ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट जो है मेरे वो 71 है और 29 जो है वो अनआंसर्ड है। देखते हैं क्या रहता है स्कोर यहाँ पे। तो यहाँ स्कोर 59.75 है और परसेंटाइल 97.84 है, एक्यूरेसी 87.32 है। यहाँ पे इंग्लिश में 6 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं और आई थिंक 21 अटेम्प्ट्स थे मेरे, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। 13.5 स्कोर आया है, काफी क्वेश्चंस गलत हुए हैं। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूरे सही हैं। रीजनिंग में 3 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, टोटल 9 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस गलत कर दिया मैंने। तो यहाँ पे इंग्लिश में 10 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग किया है मैंने, यहाँ पे एरर वाला। और पहले मैंने इसमें नो एरर ही किया था, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे जबरदस्ती एरर निकाल दी इस क्वेश्चन में। और 14 नंबर में गलत हुआ, CAB होगा, ठीक है। और एक 20 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग किया, सेगमेंटेड नहीं होगा, यहाँ पे जम्बल्ड होगा। देन एक क्वेश्चन ये रॉन्ग हुआ है और एक क्वेश्चन 28 नंबर रॉन्ग हुआ है और एक 26 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा क्वांट में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। रीजनिंग में यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिए, डेफिनेटली फॉल्स बताना था, तो ये वाला नहीं होगा, G > H। ओके, तो एक क्वेश्चन ये गलत हुआ है, एक ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, नन ऑफ द अबव होगा यहाँ पे। और एक क्वेश्चन ये रॉन्ग हुआ है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस रीजनिंग में और 6 क्वेश्चंस इंग्लिश में गलत हुए हैं और बाकी तो ठीक है। तो आप भी इसको अटेम्प्ट करिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कितना रहा। और अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो ले सकते हो, काफी अच्छा है। और इसमें आपको सारे प्री और मेंस के मिल जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपको 1 ईयर का मैंने ये प्लान लिया था। तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि SBI के, IBPS के सारे एग्जाम्स जितने भी बैंक के हैं ये सबका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव वाला भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो इंश्योरेंस रिलेटेड सारे आपको मिल जाएंगे। देन स्टेट एग्जाम जो होते हैं उसके यहाँ पे अदर एग्जाम्स आप देख सकते हो, SSC के सारे एग्जाम, रेलवे के, लॉ के। तो 1 साल का प्लान ले सकते हो, उसमें सारा कुछ इंक्लूड रहेगा। और आप सेक्शनल भी ऐड कर सकते हो, तो उससे आपको देखो यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट आप देख सकते हो, ये वाले इतने सारे यहाँ पे हैं, जिसमें से मैंने क्लर्क के जो इंग्लिश के प्री वाले हैं सारे मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं ऑलमोस्ट। PO की भी थोड़े अटेम्प्ट किए हैं अभी। और तो मैं शो कर देती हूँ अपना स्कोर, तो शो कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जैसे 9.5 था, देन 11, देन 15.5, देन 11। और उसके बाद एक यहाँ पे 12 मार्क्स यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट किया था। और इसके अलावा मैंने अटेम्प्ट किया था एक यहाँ पे ये वाला, इसका 17.25। बस इतने ही मैंने अभी इसके मेंस वाले अटेम्प्ट, PO वाले अटेम्प्ट किए हैं। और क्लर्क प्री में इंग्लिश में अगर देखूँ तो यहाँ पे मैंने लगभग अटेम्प्ट कर लिए थे सारे, ये अब देख सकते हो। यहाँ पे एक बचा हुआ है, इसको किसी दिन कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छा है, मतलब अगर आप सेक्शनल ऐड कर लेते हो तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैंने अभी इंग्लिश और क्वांट का नहीं किया है, सॉरी क्वांट और रीजनिंग का नहीं किया है। 1-2 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, रीजनिंग के शायद 1 अटेम्प्ट किया है मैंने। प्री वाले में रीजनिंग के शायद 1 अटेम्प्ट किया है, देखते हैं। हाँ, 3 अटेम्प्ट किए हैं। तो इसमें 18.5 है, इसमें 33.75, 33.75। तो यहाँ पे ऐसा है। और अभी मैंने और बाकी नहीं किया है। PO वाले में क्वांट के तो मैंने नहीं किया है। और PO वाले में अगर रीजनिंग का देखें तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 ही अटेम्प्ट किया और इसमें 20 स्कोर रहा था। तो आप इसका ले सकते हो, काफी अच्छा मतलब रहता है मॉक टेस्ट, सारे लोग यही रिकमेंड करते हैं,
क्योंकि बढ़िया है, मतलब एग्जाम रेलेवेंट है। जैसे अभी आईपीएस पीओ का एग्जाम हुआ, वहाँ काफी टफ क्वेश्चंस आए थे, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे जो टफ तो थे बट एग्जाम्स में वैसे सेम मिले, और हालांकि मैंने वही अटेम्प्ट किया जैसे नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय। और अगली बार अच्छे से रफ करेंगे ताकि दिखाई दे और ऐसा कोई ब्लंडर नहीं होगा। बट लाइट नहीं है तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है, इन्वर्टर भी खराब हो गया है। तो चलिए देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय। अगला मेंस का मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है? ओके, बाय।